यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंजा बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gurudeva Jai Gurudeva Jai Pati Pavan Shila Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Jai Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol
जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरुदेव की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव भद्रामायण सुदर्शन की जय। लाडू गोपाल की जय। नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री महादेव की जय। श्री श्री हनुमान जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रणाम। भागवतम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले हमारा शिक्षा गुरु विजय गोपाल प्रभु प्रेमा पत्नी माता जी के चरण कमल में मेरा प्रणाम निवेदन करती हूँ। उसके बाद हमारे परमाराध्य गुरु महाराज श्री जयपता स्वामी गुरुदेव के चरण कमल में प्रणति निवेदन करती हूँ। उसके बाद सभी मेरे सीनियर गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स और उपस्थित सभी भक्तवृंद के चरण कमल में मैं अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दे ताकि आज की जो भागवत कथा है ये सुनकर हम सबको हृदय की सारे कलुष दूर होकर हम शुद्ध चित्त से भगवान की प्रेममयी सेवा में लग सके। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवता सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्येश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 2, Text 24 and 25. In the matter of Ajamila delivered by the Vishnu Dutas. Ajamilapi atha karna Dutanam yama krishnayo Dharmam bhagavatam shuddham Traivedam cha gunashrayam Bhaktiman bhagavati ashu Mahatmya shravanathare Anutap mahanashi Marato Ashubham atmanaha Ajamila api also atha thereafter Akarnya hearing Dutanam
of the order carriers, Yama Krishnayo, Yamodhaja and Lord Krishna, Dharmam, actual religious principles, Bhagavatam, as described in Srimad Bhagavatam, or concerning the relationship between the living being and the Supreme Personality of Godhead. Shuddham, pure, Kaivetam, mentioned in 3 Vedas. Cha, also, Gunashrayam, material religion, under the modes of material nature. Bhaktiman, a pure devotee, claims of the modes of material nature. Bhagavati, unto the Supreme Personality of Godhead. Asu, immediately. Mahatmya, glorification of the name, fame, etc. Shravanat, because of hearing. Hare, of Lord Hari. Anutapaha, very great. Mahan, very great. Ashit, there was. Smarata, remembering. Ashubham, all the inglorious activities. Atmanaha, done by himself. Translation. After hearing the discourses, you all have to say. After hearing the discourses between the Yamadutas and the Vishnudutas, Ajamila could understand the religious principles that act under the 3 modes of material nature. These principles are mentioned in the 3 Vedas. He could also understand the transcendental religious principles, which are above the modes of material nature and which concern the relationship between the living being and the Supreme Personality of Godhead. Furthermore, Ajamila heard glorification of the name, fame, qualities and pastimes of the Supreme Personality of Godhead. He thus became a perfectly pure devotee. He could then remember his past sinful activities, which he greatly regretted having performed. In Bhagavad Gita 2.45, Lord Krishna told Arjuna, Traigunna Vishaya Veda, Nistraigunna Bhavarjuna, Niridando Nitya Sattastho, Niryogakshima Atmavan. The Vedas mainly deal with the subject of the 3 modes of material nature. Rise above these modes, O Arjuna, be transcendental to all of them, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. The Vedic principles certainly prescribe a gradual process for rising to the spiritual platform. But if one remains attached to the Vedic principles, there is no chance of his being elevated to the spiritual life. Krishna therefore advised Arjuna to perform devotional service, which is the process of transcendental religion. The transcendental position of devotional service is also confirmed in Srimad Bhagavatam 1.2.6, Savai Pumsam Paro Dharmo Yato Bhakti Radhakshaje. Bhakti, devotional service, is Paradharma, transcendental dharma. It is not material dharma. People generally think that religion should be pursued for material profit. This may be suitable for persons
interested in material life, but one who is interested in spiritual life should be attached to Paradharma, the religious principles by which one becomes a devotee of the Supreme Lord. Yato Bhakti Radhakshaje. The Bhagavata religion teaches that the Lord and the living entity are eternally related, and that the duty of the living entity is to surrender to the Lord. When one is situated on the platform of devotional service, one is freed from impediments and completely satisfied. Ahituki apratihata yayatma suprasidati. Having been elevated to the platform, Ajamila began to lament for his past material activities and glorify the name, fame, form and pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Om Aganati Mirandasya Ganayana Shalakaya Chukshri Mihitamyana Tasmi Shri Gurave Nama Namo Om Vishnu Padaya Krishnaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Tinamini Namacharya Padaya Nitai Kripa Padayane Gaura Kata Dhamadaya Nagara Brahmatarine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। इस वर्ष से हमें जो संदेश मिला ये संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगी। पहले तो हम देखते हैं कि अजामिला उनका जन्म होता है ब्राह्मण कुल से, क्योंकि उनके पिछले जन्म का सुकृत के कारण उनका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल से, लेकिन उनका फॉल डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि ही वाज फॉलोइंग वैदिक प्रिंसिपल्स, जैसे रिचुअल्स, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वही स्टेज में था। So his lusty desires was not uprooted from his heart. तो इसके कारण क्या हुआ, उनके हृदय में जो इंद्रिय तृप्ति करने का जो लालसा था वो जागृत हो गया। The moment he saw the prostitute girl, he fell down and gave up all his dharmic principles and started engaging in sinful activities. तो जब वो ये प्रोस्टिट्यूट, ये जो वेश्या औरत को देखते ही उनके हृदय का जो लालसा जागृत हो गया, वो उनका फॉल डाउन हो गया और ये वेश्या औरत को साथ रहने लगा अपने घर बार छोड़ के। तो गांव में ऐसा होता है, जब ऐसा कोई कार्य करता है तो पंचायत से उनको बुलाते हैं और गांव के बाहर कर देते हैं। जैसे हुक्का पानी बंद, गांव में क्या बोलते हैं, हुक्का पानी बंद हो गया और वो गांव के बाहर अकेला रहने लगा। लेकिन उनका अहोभाग्य हुआ इस स्टेज में, जब ये जो वेश्या औरत के साथ अजामिल का बहुत सारे बच्चे हुए। जब इनके कनिष्ठ पुत्र, ये जब गर्भवती थी ये वेश्या औरत, तो उस समय उनको साधु संग करने का मौका मिला था। तो एक बार क्या हुआ था, चतुर्मासा के टाइम कुछ साधु संत उनके गांव में आए थे और ढूंढ रहे थे एक भक्त का घर, क्योंकि रात गुजारनी थी। तो गांव में होते हैं ना कुछ बच्चे होते हैं नौटी बच्चे, तो बोले हमको कुछ भक्त का घर दिखा दो, हम आज का रात गुजारने हैं। तो ये बच्चे ना उनको दिखा दिया, जाओ जाओ ये महान भक्त है, इनके घर जाओ। तो ये साधु संत कहाँ चले गए, अजामिल के घर में। तो अजामिला तो ये साधु संत को देखते आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उनको मालूम था क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ और उनके माता पिता कैसे ब्राह्मण को, वैष्णव को रिसीव करते थे, ये उनको मालूम था। तो उन्होंने उनको अच्छी तरह से स्वागत किया, पाद पूजा किया, आसन दिया, खाने पीने की बंदोबस्त हुआ, भोग लगाया। फिर उन्होंने सब भोग खाने के बाद उनका उच्छिष्ट खाया, उनके मुंह से कृष्ण कथा सुना, उसके बाद सब सोने गए। तो दूसरे दिन जब ये साधु संत उनके घर से जा रहे थे, तब उन्होंने ये अजामिल की सेवा से बहुत संतुष्ट हुआ और ये जो वेश्या औरत को बोले तुम्हारे पत्नी को बुलाओ, हम आशीर्वाद देंगे। उनको आशीर्वाद दिया और बोलते ये जो इनके घर में जो बच्चा है तुम्हारा, ये लड़का ही होगा, पुत्र संतान होगा और इसका नाम रखना नारायण। तो इस तरह संभव नहीं हुआ, ये भी भगवान का ही अरेंजमेंट है, एक परिकल्पना है कि ये जो अजामिल को जेना तेना
प्रकार भगवान का नाम कराना। ये तो इतना अधपतित हो गए थे, अगर कोई आके बोले तुम भगवान का नाम जपो नहीं करेगा, उनको मालूम था। तो इसीलिए ये उन्होंने ऐसा किया, उनका पुत्र का नाम बोला रखने को नारायण। तो यहाँ भी ये वात्सल्य रस में हम देखते हैं कि अजामिल का नारायण जपना शुरू हो गया। ये नारायण यहाँ नारायण एक का नारायण वो पानी दे, मतलब इस तरह उनका नारायण का जप शुरू हो गया था इसी स्टेज में। तो उसके बाद हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ कैसे अंत काले जमा में शरण मुक्त कले बनम, तो उन्होंने ही कुड चांद द नेम ऑफ नारायणा। तो आप जानते ही हैं भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे वो ये इतना पापी था, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाया था यमलोक में, उनको बहुत तरह तरह की पनिशमेंट देने के लिए। तो इमीडिएटली आ गए कौन, उनका मृत्यु होते आगे कौन आगे, वो आगे यमदूत। लेकिन ये यमदूत के आने के बाद पश्चात देख रहे विष्णुदूत आ गए। आप सब जानते हैं ये कहानी, फाइटिंग होता है बिटवीन यमदूत एंड विष्णुदूत में। तो ये समय कि ये अजामिल का अहोभाग्य का कारण क्या हुआ, ये यमदूत और विष्णुदूत का जो डायलॉग, ये कथोपकथन चल रहा था, बातचीत, वो पूरा सुनने को मिला। तब ये सुनने के पश्चात क्या हुआ, अभी अजामिल को पता चला कि ये 3 गुण के अधीन, जो सतो रजो और तमो गुण के अधीन ये धर्म किया है, इसके ऊपर 3 गुण के ऊपर भागवत धर्म किया है। और उनको और भी पता चलता है कि भगवान के साथ जीव का संबंध क्या है। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो ये सारी बात अभी अजामिल को मालूम पड़ गया और उनको सद्बुद्धि हुआ और उन्होंने ठान लिया, डिटर्मिनेशन लिया कि अब मुझे ये सब पाप सिंफुल एक्टिविटीज छोड़ के पूर्ण रूप से भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना है। तो इसके पश्चात क्या होता है, अभी अजामिल अभी क्या किया, जब विष्णुदूत जैसे शुद्ध भक्त के मुंह से नाम जश गुण लीला ये सुनने को मिला, तो उनका चेत दर्पण मार्जनम हो गया और उन्होंने अभी शुद्ध प्योर वैष्णव बन गया। हम शास्त्र में देखते हैं कि 3 स्टेजेस ऑफ चैंटिंग है। एक तो नामापराध स्टेज, नामाभास और शुद्ध नाम। तो नामापराध जो चैंटिंग है वो जब विद ऑफेंस हम करते हैं, तो नामाभास स्टेज क्या है, क्लियरिंग स्टेज है। धीरे धीरे अपराध कम होता जाता है, जैसे 1% खत्म हुआ आपका, धीरे धीरे 100% आप जब शुद्ध हो जाएंगे, 100% शुद्ध हो जाएंगे, तब आप शुद्ध नाम में आएंगे। तो इस स्टेज में हम देखते हैं नामाभास में इसका अनर्थ निवृत्ति शुरू हो गया अजामिल का। तो मुद्दे की बात यही है कि अजामिल पहले मालूम नहीं था ये जो धर्म क्या है। नॉर्मली सब लोगों को क्या है कि हम मेटेरियल धर्म जो बोलते हैं, हम करते हैं, पूजा करते हैं, दान ध्यान पुण्य कर्म करते हैं, इसके लिए हम कुछ मांगते हैं, मतलब फॉर मेटेरियल बेनिफिट, फॉर मेटेरियल कंफर्ट के लिए हम ये पूजा पाठ करते हैं। लेकिन भागवत धर्म क्या है, ये जो भगवान की निष्काम धर्म, जिसमें कोई लालसा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, शुद्ध भक्ति, इसके बारे में बहुत लोगों को मालूम है ही नहीं। हम भी माता पिता से देखते हैं, मंदिर जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो और कुछ मांगो, मतलब तो अच्छा रिजल्ट हो, बेटी की शादी हो जाए, हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगते हैं। लेकिन वो जो धर्म है वो भागवत धर्म नहीं है। तो हम आएंगे डिटेल में भागवत धर्म में। तो अभी अजामिल पश्चाताप करने लगा, वो बोल रहा है, सोच रहा है, अरे मैं जिंदगी दी मेरे ये जीवन को, मैं पूरी जिंदगी भर मैंने पाप कार्य में लिप्त हो गया और मेरा चेस्ट पत्नी उनको छोड़ दिया, अपने भक्त माता पिता उनको छोड़ के इस वेश्या के साथ रहने लगा और इस वेश्या के गर्भ में मैंने संतान उत्पन्न किया। मतलब वो बहुत पश्चाताप कर रहे हैं अभी उनको, जब ये सारे गान मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाता है तभी वो पश्चाताप कर रहे हैं। जैसे कैसे पश्चाताप कर रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गोंगाइनो, हरि हरि विफले जन्म गोंगाइनो, हरि हरि
জানিয়া শুনিয়া বেশ খাইনু হরি হরি বিফলে জনম গঙ্গাইনু গোলকের প্রেম ধন হরি নাম সংকীর্তন রতি না জন্মিল কেনে ताय हरि हरि। तो इस तरह वो बोल रहे हैं मैं पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, ना ही हरि राधा कृष्ण का भजन भी नहीं किया, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक धाम से आए हैं इसके प्रति मेरा आसक्ति नहीं जन्मा, तो वृथा ही चला गया मेरा ये जीवन। वो इस तरह वो पश्चाताप किया है। श्रीनताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति शुभुरित शताम। इसका मतलब होता है जब हम भगवान का पुण्य कथा श्रवण करते हैं उससे क्या होता है, हमारे हृदय से जो इंद्र तृप्ति की लालसा ये इसका विनाश हो जाता है। तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। ये अजामिल जब नारायण का मतलब नाम ले पाया तो वो एक नाम से ही उसका सारा पाप मुक्त हो गया। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये जो कृष्ण प्रेम इसको मिलना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जब हम शुद्ध चित्त से कोई शुद्ध भक्त के मुंह से श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। हरे कृष्ण। तो अभी हम योगा मतलब जो लैडर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। योगा में पहले तो कर्मयोग, उसके बाद लैडर में क्या आता है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, देन टॉप मोस्ट है भक्ति योग। तो ये जो ज्ञाना स्टेज, ध्याना स्टेज और कर्मा, ये 3 प्रोसेस से ही ये हमारे हृदय के पाप कर्म करने की जो वासना वो आपरूट नहीं हो सकता है। केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही हमारे हृदय का कलुष को और पाप कर्मों करने का वासना से हम मुक्त हो सकते हैं। एक तो है ये जो दान ध्यान तपश्चर्या ये सब करते हैं तो ये प्रारब्ध कर्म जो है वो तो विनाश हो सकता है, लेकिन अप्रारब्ध कर्म वो जो अभी गोदाम में पड़ा है, जैसे शोरूम में आप देख रहे हैं ये प्रारब्ध कर्म उसका तो विनाश होता है। तो ये शोरूम खाली हो जाते हैं, वो गोदाम से आके बढ़ जाएगा, तो फिर हम वो पाप कार्य में हम फिर से लग जाएंगे। तो ये जो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं विश्वामित्र मुनि वो ध्यान कर रहा था, और ध्यान के समय जैसे घुंघरू का छम छम आवाज आया तो अचानक उनका आँख खुल गया, और उनको बस वो घुंघरू की आवाज सुनते ही उनको मन में आ गया कोई सुंदरी कन्या आई है। वो सेलेस्टियल कौन था, उर्वशी मेनका। तो वो जब इस मेनका को देखा उनका फॉल डाउन हो गया, क्योंकि ये ध्यान योगी के हृदय से भी वो जो वासना जो है लालसा वो विनाश नहीं हुआ, इसके कारण उनका फॉल डाउन हुआ। लेकिन हम देखते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर को, ये कितना 3 लाख नाम जपा करते थे, तो इनको भी अधःपतन कराने के लिए रामचंद्र खान एक वेश्या, देखिए कितना सारा वेश्या का इसमें है इसमें। तो ये जो रामचंद्र खान जब देखा कि हरिदास ठाकुर बहुत पॉपुलर हो गए, सब मन में लगे, हरि नाम में मस्त हो गए, तो उनको अधःपतन कराने के लिए वहां पे भी एक वेश्या को भेजा गया था, उसका नाम है हीराबाई। तो ये हीराबाई आया और हरिदास ठाकुर की कुटिया के सामने एक तुलसी मंडप, और खाली वो हरिनाम तुलसी प्रदक्षिण प्रणाम और हरिनाम करते थे। तो ये औरत सज धज के आए रात को, और उन्होंने तुलसी को प्रणाम किया। उसके बाद हरिदास ठाकुर को आके प्रणाम किया और बोले मुझे आपके प्रति मेरा डिजायर है, आप मुझे मेरा इंद्रिय को तृप्ति को फुलफिल करिए, मुझे सेटिस्फाई करिए। तो उन्होंने ऐसा डायरेक्ट अप्रोच किया, तो हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुआ,
उन्होंने कहा ठीक है, आपका अभिलाषा मैं जरूर पूरा करूंगा, आप थोड़ी देर रुकिए, मेरा माला जाप खत्म होते ही मैं आपका डिजायर फुलफिल करूंगा। इस तरह देखते हैं लगातार 3 दिन वो जापते जापते सुबह हो गया। तो बोले ठीक है फिर कल आओ। कल वो भी जापते जापते हो गया सुबह। 3 दिन इस तरह जब हुआ और ये जो औरत थी वो हरिदास ठाकुर के जैसा शुद्ध भक्त के मुंह से जब सुनते सुनते 3 दिन में उल्टा क्या हुआ, उनकी हृदय का परिवर्तन हो गया। अभी उनको जो काम वासना था वो विनाश हो गया। अभी आके हरिदास ठाकुर की चरण कमल में गिर पड़े और बोलते आप मुझे उद्धार कीजिए, मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे आपके चरण में शेल्टर दीजिए। तभी हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, तुम जाओ घर जाओ और जितने तुम पाप का धन कमाया हुआ धन है सब गरीबों में बांट के तुम एक वस्त्र में आ जाओ। फिर हम देखते हैं हरिदास ठाकुर हीराबाई को इनिशिएशन देते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। उनका नाम होता है लक्ष्य हीरा। तो उन्होंने कहा कि मैं फुलिया में इसलिए आया था तुम्हें उद्धार करने के लिए। बोलिए हरिदास ठाकुर की जय। तो हम देख रहे जब तक हम भक्ति मार्ग में नहीं आ पाएंगे तो हमारी जो उसी 3 गुण के अंदर ही हम रह जाएंगे, इससे उड़ नहीं जा पाएंगे। और ये जो संसार चक्र पुनरपि जन्मम पुनरपि मनमम, इसमें हम फंसे जाएंगे। तो श्री प्रभुपाद उनके तात्पर्य में 2 गुरुत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें बताया। एक तो है मेटेरियल धर्म जो 3 गुण के अधीन है और दूसरा जो है वो है परधर्म। तो ये मेटेरियल धर्म के बारे में आप लोगों में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। इससे क्या होता है, हमारा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। कोई अगर डायरेक्ट भक्ति में नहीं आ सकते तो उनके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे आप सब जानते हैं कुछ धर्म कर्म ना करने से कुछ करो वो अच्छा है। आप जानते हैं कि जीव हत्या पाप है, ये शास्त्र में है। लेकिन वेदों में इसका वर्णन क्या है कि अगर आपका टांग जीवा को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको अमावस्या के दिन काली माँ के सामने मंत्र उच्चारण के द्वारा वो गोट का बलिदान होता है। तो उसी गोट का मांस आप खा सकते हो, लेकिन फुल्ली नोइंग दैट गोट विल ईट यू इन योर नेक्स्ट लाइफ। जब जन्म होगा नेक्स्ट लाइफ में वो गोट आपको काट के खाएगा। ये इसका मतलब होता है मांसा, मतलब वो आपको काट के खाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये हमारे जो ओमानी फ्रेंड्स ये लोग भी हमारे साथ जाते हैं तो वो लोग यूरोप में मीट का भी वो सब नहीं खाते हैं क्योंकि वो लोग हलाल के बिना नहीं खाते हैं। हलाल का भी प्रोसेस वही है, कैसे धीरे धीरे पशु को बलिदान करते हैं। क्यों करते हैं कि आप उनके आंख में देखो कि कितना पेन होता है एक प्राणी को जब आप हत्या करते हो। तो वो देखने के बाद आपके हृदय का परिवर्तन होगा ना, आपको इच्छा नहीं होगा मेरे जीवा के लिए एक प्राणी को इतना कष्ट में दे रहा हूँ, इससे हृदय में अपने हृदय में परिवर्तन आएगा। इसके लिए प्रोसेस बताया गया है। तो हमारा 4 वेद है। सर्वप्रथम है ऋग्वेद, ऋग, साम, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अभी जो एंटर वेदा है इसको 3 डिविजन में भाग किया गया है। एक है कर्मकांडा, ज्ञानकांडा, उपासना कांडा। कर्मकांड में क्या है? ओके, कर्मकांड 3 डिविजन है, कर्मकांड, ज्ञानकांड एंड उपासना कांड। तो ऋग्वेद हम बोलते हैं वेद वेदांत, तो आप पठन करो। ऋग्वेद में क्या है, ये जो एंटायर वैदिक नॉलेज है मेनली कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासना कांड ऋग्वेद में है। सामवेद में क्या है, सेम नॉलेज इन ए सॉन्ग फॉर्म ऋग्वेद में है। एंड यजुर्वेद में क्या है, संस्कारास, ये हैंडबुक फॉर द प्रीस्ट। और अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में है हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। ये 4 वेद है।
तो अभी ये वेद में क्या क्या हमको परमिशन बताया गया कि आप डेमीगॉड का वर्शिप कर सकते हो, देवी देवता का पूजा, हवन, ऑस्टेरिटी, ये सब करोगे किस लिए? मेटेरियल प्रॉफिट और बेनिफिट के लिए आप कर सकते हैं, वेद में परमिशन दिया गया है। तो अभी हमको देखना है, हमें ये जो मेटेरियल धर्म ये करना है क्या पर धर्मों को अपनाना है। Sri Chaitanya Mahaprabhu is teaching us not to get trapped by the Vedic flowery language and instructed us to read Srimad Bhagavatam. ये जो श्रीमद् भागवतम है, यह है अमला पुराना, सभी शास्त्रों का निचोड़ है, एसेंस ऑफ ऑल द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। इसको क्या बोलते हैं? निगम कल्पतरु गलितो फलम। इतना मतलब गलितो फलम, इवन यू कैन ड्रिंक इट, मतलब कान से आप ड्रिंक करो उनका कथा। ये जो श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्र का सार है, क्रीम। तो ये जो हमारा मेटेरियल धर्म के में बड़ी में बताया, इसका डिफेक्ट क्या है? इसका डिफेक्ट यही है कि किसी भी एक स्टेज में आप स्टकअप होने का आपको चांसेस है। जब लोग कर्मयोगी पुण्य कर्म यानी कि सकम कर्मी जो पुण्य कर्म करते हैं तो वो स्वर्गलोक जाते हैं। तो स्वर्गलोक जाके वो सोचता है यही धर्म अच्छा है, कितना अच्छा और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति, वहाँ पे तो अप्सरास है, सोमरस है और बहुत अच्छा चीज है, वो तो सोचते हैं यही करना है। लेकिन डिफेक्ट क्या है? क्षीणे पुण्य महत्तलोके विशन्ति। तो जब हमारे ये पुण्य कर्म का फल खत्म हो जाता है, हमको फिर से इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो और इससे हमारा कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता है, हम क्योंकि हम सत्व रजो और तमो तीन गुण के अधीन ही रह जाते हैं, इसीलिए हम संसार चक्र से हमारा छुटकारा नहीं होता है। तो हमको करना क्या है? करना है हमको निवृत्ति मार्ग। दो मार्ग बताया है वेदों में, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, और निवृत्ति मार्ग लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो हमको अपनाना है वो है परधर्म। सवै पुंसं परो धर्मो यतो भुक्ति राधस्ते। सवै पुंसं मीन्स फॉर एंटायर मैनकाइंड। परधर्म क्या है? यतो भुक्ति राधस्ते, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। और ये भक्ति कैसे करना है? अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। एंड देन व्हाट रिजल्ट वी गेट? ययात्मा सुप्रसिद्धति, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाता है हमारा आत्मा। अहेतु की अप्रतिहता मीन्स अनअलाइड एंड अनब्रोकन। अहेतु की मतलब बिना हेतु को करना है। ऐसा नहीं कि मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, मेरे वीकली प्रोग्राम है मेरे घर में, मैं और भी बहुत सारा सेवा करता हूँ। हम कभी बिना हेतु के नहीं, हम सोचते देखो इतना सेवा करता हूँ कि हमारा माँ चक्रवर्ती कभी अनाउंस भी नहीं किया, मुझे प्रशंसा भी नहीं किया, मैं इतना सेवा करता हूँ। तो हेतु के कारणों को जब हम ये मन में आता है तब मतलब ये अनालय नहीं होता है भक्ति, तब वो हो जाता है कुछ व्यापार हो जाता है। हम कुछ भक्ति कर रहे हैं, उसके पद से हम कुछ मांगते हैं, उसको बोलते हैं अप्रतिहता। एक दिन हमने भक्ति किया, बहुत सेवा किया, दूसरा दिन आज छोड़ो, आज तो ठीक है कल कर लेंगे, कल तो बहुत किया, नहीं, अप्रतिहता आपको करना है, अनब्रोकन। ये समझने के लिए हैंड एंड बेली मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर हाथ सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं होल बॉडी का सेवा नहीं करना है मुझे, तो क्या है वो, इसके शरीर के साथ अगर हाथ का कोई संबंध नहीं है, मतलब वो डिजीज कंडीशन में है, पैरालाइज हो जाता है ना। तो उसी तरह अगर हम हाथ अगर चाहे डायरेक्ट बेली को सर्व कर सकता है, हाँ नहीं कर सकता है। द मोमेंट हैंड फीड्स द बेली थ्रू माउथ, देन होल बॉडी गेट्स नरिशमेंट। हाथ को अलग अलग से नहीं, पूरा शरीर को मिल जाता है। तो हमको हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आप कितना भी आप धर्म कर्म करो,
आप चैंटिंग करो, जब तक आप सद्गुरु के चरणाश्रय नहीं लोगे तो आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा, आपके साथ भगवान का कनेक्शन ही नहीं होगा। तो हमको भक्ति करना है किसी के सद्गुरु के चरणाश्रय करके, हमारे सीनियर्स के गाइडेंस पे सदैव हमारे साथ कोई होगा जो हमें गाइड करे। तो रूप गोस्वामी ने क्या बताया कि पद्म पुराण में क्या कहा है, आप लोगों को मालूम है, आराधना विष्णु श्रेष्ठम। आराधना किसका श्रेष्ठ है? विष्णु का। लेकिन उससे ही श्रेष्ठ क्या है, किनका आराधना करना? उनका भक्त का आराधना करना। इसको बोलते हैं सुप्रीम स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो ये जो नॉलेज है, हाँ, ये जो हम सोचते हैं उनको भक्त करना, भक्त का पूजा करना चाहिए, लेकिन कौन सा भक्त जो माधुर्य रस से भगवान का सेवा में जुड़े हैं। इससे पहले कोई भी आचार्य, कोई भी अवतार ने हमें माधुर्य रस के बारे में नहीं बताया, बस वात्सल्यता की बताया। केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु हमको ये जो रूप गोस्वामी जी ने विदग्ध माधव ग्रंथ में बताया, ये जो महावदन्य अवतार, इसीलिए उनको वो कहा गया कि महावदन्य अवतार, कि माधुर्य रस के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने बताया। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौर ईशे नमः। In the age of Kali, exhibited Madhurya Rasa never previously bestowed। तो इसलिए हम देखते हैं कि मायापुर में आप ऑल्टर में देखेंगे तो अष्टसखी, हम उनका पूजा करते हैं ना, टॉप मोस्ट डिवोटीज, सखीज, मंजरीज हम ऑल्टर में रखते हैं। पहले नहीं होता था, राधा को भी कृष्ण के साथ कहीं टेम्पल में स्मार्ट ब्राह्मण जो लोग नहीं एक्सेप्ट किया था, तो वही है टॉप मोस्ट डिवोटी। उनके ही चरण कमल के आश्रय करके हमको भगवान का सेवा करना है। अहेतु की अप्रतिहता, जब हम ऐसा सेवा करेंगे तो हमको कुछ फल तो मिलेगा ना। अभी अजामिल को संबंध ज्ञान हो गया कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, दैट इज संबंध ज्ञान। देन अभिदया स्टेज, अभिदया स्टेज में क्या किया, ज्ञान तो भी क्या करना, क्या है हमको भगवान का सेवा करना, तो दैट इज अभिदया स्टेज। देन प्रयोजना स्टेज, आप भगवान का प्रेम में ही सेवा कर रहे हैं, देन यू विल गेट सम रिजल्ट ना, देन यू विल relish that fruit, that is कृष्ण प्रेम। हेलो निताय विने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धरो निताय पाय। जब तक हम नित्यानंद प्रभु की चरण को नहीं पकड़ेंगे तब तक गौरांग महाप्रभु नहीं मिलेगा। तो लोचन दास ठाकुर ने कहा है, लोचन बोले शेई पापी एलोर गलो। अगर वो जो पापी मतलब जो भगवान नित्यानंद के चरण में शरणागति नहीं करते हैं, तो उनको ये संसार चक्र से फांसा रहना पड़ेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कौन सा धर्म के बारे में बताया भगवान कृष्ण ने, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो सकाम कर्मिस करते हैं, इस धर्म को छोड़ के भगवान कहते हैं माम एकम, केवल मेरे चरण में शरणागत हो जाओ। एंड हाउ टू डू दैट, टू फॉलो द भगवता धर्म। श्रृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थ हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सुताम्। तो अभी अजामिल क्या किया, पश्चाताप हो गया। पश्चाताप होने के पश्चात उनको सद्बुद्धि हुआ, तो अभी अजामिल कहाँ चले जाते हैं, वो हरिद्वार चले जाते हैं और एक विष्णु मंदिर में उन्होंने शेल्टर लिया।
और पूर्ण रूप से नवविधा भक्ति से उन्होंने शिव विग्रह का अर्चना शुरू किया। और जब उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी मन को, अपनी चेतना को पूर्ण रूप से भगवान की चरण कमल में निबद्ध कर किया, तब देखते हैं फिर से वही जो 4 जन विष्णुदूत आए थे, महान भक्त, वो ये जो भक्ति किया, कैसे किया उनके जीवन में। हम सोचते गुरु कहाँ है, ये जो जब उनके मुंह से बड़ा धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में और ये जो मेटेरियल धर्म के बारे में सुना समझ, तभी उन्होंने उनको, ये 4 विष्णुदूत को, he accepted them as his गुरु, और उनको जैसा बताया गया उसी हिसाब से उन्होंने भगवान का सेवा किया। अभी देखते हैं कि वो जो 4 जन विष्णुदूत आ गए हैं इनको लेने, किनको, अजामिल को लेने। भगवद गीता में कहते हैं न यह विक्रमणासस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सर्वमोपि यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्। अगर आप थोड़ा भी आप भक्ति करते हो तो ये भक्ति का जो अनुशीलन, ये इसका व्यर्थ नहीं जाता है, इसका परमानेंट इफेक्ट रह जाता है। तो भगवान गारंटी देता है, अगर कोई मेरा सेवा करता है, मेरा भक्त, और इस जन्म में वो अगर उस सेवा को संपूर्ण ना कर सके तो मैं उनको फिर से मौका देता हूँ। या तो आपको ह्यूमन बॉडी तो मिलेगा, या तो मर्केंटाइल फैमिली में, या तो वैष्णव परिवार में आपको जन्म मिलेगा, ताकि आप अपना भगवत भक्ति को संपूर्ण करके भगवत धाम को, तत्धाम परमाम मम, जहाँ पे जाने से आपको फिर से वापस नहीं आना पड़ेगा। तो जब अजामिल को लेने आए ये 4 जन, उनको उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, और ये जो 4 जन विष्णुदूत उनको गोल्डन चैरियट में बिठा के सम्मान पूर्वक उनको भगवान विष्णु के धाम में ले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। अच्छा, यहाँ पे जब हम देखा कि और श्री गुरुदेव हमारे जीवन में, जब गुरु महाराज सदगुरु आते हैं तभी हमको ये ज्ञान होता है। ये जो सारे विधि बताए, मतलब हम तो अज्ञ था, जो ज्ञान की जो लाइट, वो जो बोलते टॉर्च, वो कौन प्रदान किया, वो है सदगुरु। श्री गुरु কৃপায় ভেঙেছে স্বপন, বুঝেছি এখন তুমি আপন, তব নিজ জন পরম বান্ধব, তব নিজ জন পরম বান্ধব, সংসার কারাগারে প্রাণের ঠাকুর গোরা, ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা। बोल रहे हैं उद्धार होना माया जाल होते ये दासेरे केसे धरे। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं की गति হইবে কখনো ভাবিনি, হরি ভক্তের কাছেও যাইনি। तो हम पूरा डार्कनेस में था, ये मालूम ही नहीं था हमको भक्त के पकड़, शुद्ध भक्त के पास जाना है, उनके पास से श्रवण करना है। ये ज्ञान तभी आया हमारे गुरु महाराज से। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम कृष्ण लोक में तभी हम जा पाएंगे जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में सदगुरु के चरणाश्रय करके हम भक्ति करेंगे। तो ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो है भक्ति। हाँ, दैट इज लाइक हम गेटिंग वीजा। जैसे सोचिए मेरे पास शेंगेन वीजा है, मुझे जर्मनी जाना है, पार्टा के पास। अभी मैं भक्ति करता हूँ, मतलब वीसा है मेरे पास, लेकिन टिकट नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? टिकट कहाँ से मिलेगा? गुरुदेव से। तो जब गुरु महाराज हमको गोलोक वृंदावन जाने का टिकट देंगे, तब हम प्लेन में बैठ के गंतव्य स्थान में हम जा पाएंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम प्लेन मिस हो गया, हो सकता है ना, तो क्या होगा? हम कैसे गोलोक, तो छूट गया मेरा प्लेन, कैसे जा पाएंगे? तो फिर से हमारा दीक्षा गुरु को फिर से जन्म लेना पड़ेगा।
हमको, मेरे को उद्धार करने के लिए। समझ में आया कि इतना दायित्वभार उन्होंने उठाया। तो हम सोचते हैं कि दीक्षा का मतलब हो गया, अभी तो मेरा दीक्षा भी हो गया, 16 वाला जप रहा हूँ, अभी तो मैं महान भक्त हो गया, सब कुछ जानने का क्या है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन अभी दीक्षा का मतलब क्या है, गुरु महाराज से हमको भक्ति लता का सीड मिला है, केवल बीज मिला है। अभी उस सीड को आपको श्रवण कीर्तन रूप जल सिंचन करके उसको बहुत जतन से उस बीज को पहले अंकुरित कराना है। लता तो दूर, अभी तो बीज, उसको अगर ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो सारे अनर्थ आके उस बीज को ही ट्राई कर देगा। समझ में आया? तो ये जो किसान तो जानते हैं ना कैसे कल्टीवेट करता है। वो जो पैडी फील्ड, जब पैडी फील्ड को देखा है कैसे पानी से पूरा फ्लडिंग कर देता है ताकि उससे वीड्स यानी कि आगाछा ना जमे। तो हमारी जीवन को भी एकदम प्लावित कर देना है, कैसे? कृष्ण भक्ति के द्वारा। कैसे? हमारे पास भक्ति दीक्षा वीकली प्रोग्राम है, स्टडी क्लास है, कृष्णा क्लब है। तो हर एक दीक्षित भक्त को एक ना एक अपना प्रोग्राम होना चाहिए। तो हम कई जगह जाते हैं कि प्रोग्राम एक चलता है, इतना सारा लीडर्स आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे का टांग खिंचाई करते हैं। लेकिन अपना एक प्रोग्राम रहता है तो क्या वो खुद का भी कितना प्रगति होता है, उनको स्टडी करना होता है, प्रिपरेशन है, क्या बोलेंगे, वक्त को बुलाना है। तो इस तरह हम पूरा हमारे जीवन, कोई टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम है ही नहीं कुछ अनर्था करने का, तो उससे हमारा जीवन प्लावित हो जाता है। अभी जो ये भक्ति की सीड जो है, भक्ति की बीज जो है हमारे हृदय में, उसको अब जब लता उठते हैं तो उसको फेंसिंग करता है ना, जब चारा होता है तो फेंसिंग करना पड़ता है, नहीं तो गोट कोई आके खा जाएगा। तो हमको भी बहुत केयरफुली पौधे को रखना है, नहीं तो ये जो सारा अनर्थ था उसको खा जाएगा। क्या है अनर्थ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर्य। इसके अलावा सकलोय भी है। जब लोग भक्ति करते हैं तो सोचते हैं मेरा नाम, जस, पूजा, प्रतिष्ठा, ये भी अनर्थ ही है, ये भी सब अनर्थ ही है। तो हम अनर्थ से मुक्त कैसे होंगे? हमको साधु संग, हमेशा साधु के संग में रहना है, उत्तम अधिकारी भक्ति। इसलिए आप देखिए हम लोग हमेशा मायापुर से महाराज को उत्तम वरिष्ठ, मतलब महाराज उत्तम अधिकारी भक्तों को उनके माध्यम से जब हम सुनते हैं, मतलब हम पौधे को सनलाइट मिल रहा है। तो लेकिन कोई उठाते, मतलब इसका फायदा लेना चाहिए हमको, लेकिन लोगों को कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आप आइए, सत्संग करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक वृंदावन से आए हैं, गोलोक की बनी, इसके प्रति अभी भी हमारा कोई आसक्ति ही नहीं जन्मा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस कलियुग कलिहत जीव के लिए भगवत प्राप्ति की उपाय क्या है? वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम का जप करना है हमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे तो हमने आज क्या क्या सीखा है? श्रील प्रभुपाद का पाठपुट से हमने जाना है मित्र धर्म, पर धर्म के बारे में। तो हमको अपनाना क्या है? पर धर्मों को अपनाना है, जिससे हम सच्चित आनंदमय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, and never return to this miserable material existence।
और हमको क्या करना है, इस फिर से जन्म मृत्यु की चक्र से नहीं फंसना है। केवल और केवल मात्र संभव होगा ये जब हम पूर्ण रूप से भगवान की प्रेममयी सेवा द्वारा गुरु गौरांगा का चरण में पूर्ण शरणागति करेंगे। तो हमको पूर्ण रूप से शरणागति कैसे किया भक्ति विनोद ठाकुर 2 लाइन करके फिर हम आज का क्लास समाप्त करके आप लोगों को कुछ डाउट्स या कोई प्रश्न है उसमें हम जाएंगे। मानस देहो जो কিছু और बिनु तुआ पदे नंद किशोर मानस देह गेहो जो কিছু और बिनु तुआ पदे नंद किशोर मारबीरा জয়ে ছাদুহারা নিত দাস প্রতি তুয়ায় অধিকারা কি তো জন্ম যথা দাস মোহে মুখ ব্রহ্ম জন্মে ठाकुर कह रहे हैं कि मैं आपके चरण में नित्य दास हूँ। आप अगर चाहे तो आप रखिए, अगर मारना चाहे मुझे मारिए। मेरा जो भी कुछ है इस मनुष्य शरीर, मेरा देहो गेहो मीन्स मेरा घर, मेरा परिवार, मैं सब कुछ आपके श्री हरे कृष्णा मेरा जो भी कुछ है मैं नंद हे नंद किशोर आपके चरण में मैं समर्पित करता हूँ। मैं अगर आप चाहें कि मेरा फिर से जन्म हो तो मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए, भगत के घर में जन्म हो। तो इससे अगर इंसेक्ट बन के भी मुझे जन्म लेना है फिर भी अच्छा है, लेकिन ब्रह्म पद में कोई आश नहीं है। ब्रह्मा बन के जन्म लेने का मुझे कोई लालसा नहीं है। आप ही है मेरा जनक जननी प्रभु गुरुपति, तुम ही सर्वमय हो। इस तरह वो हम पूर्ण रूप से हम शरणागति करेंगे भगवान, तभी जाके हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्ण। हरि बोल। इस वर्ष से और पॉपुर से कोई डाउट्स है, कुछ प्रश्न है, आप लोग पूछ सकते हैं। कृष्णा मतलब सब क्लियर है, समझ में आ गया है ना? तो फिर मैं आप लोग को 2-3 मिनट के लिए सीमाचल देश लेके जाना चाहूंगी। आप लोग आएंगे सीमाचल देश? तो ये जो हम जब भी बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं तो हमारा ये जो भौतिक बिजनेस रहता है तो हम सोचते हैं ये खत्म करके कब रियल बिजनेस में आना है। तो हमारे हर ट्रिप में हम 3-4 दिन पूरा भगवान के लिए रखते हैं। तो इस समय हम बहुत ही सौभाग्य है कि जर्मनी में बवेरियन फॉरेस्ट के अंदर वो 500 मीटर ऊंचाई पे ये प्रहलाद नरसिम्हा मंदिर है और इनका ये सुंदर विग्रह को देखते हमारा हृदय गदगद हो गया और मैं रोने लगी। मैं बोला किस कारण है तो आप प्रभु आप मुझे यहाँ लेकर आए हो मालूम नहीं है, मुझे केवल और केवल जब यहाँ आए हूँ आपकी भक्त और आपकी थोड़ा सेवा चाहिए। तो इतना सुंदर वातावरण जो एटमॉस्फेयर है इतनी स्पिरिचुअल है, वहाँ पे ओपन ग्रीन लैंड, गाया चल रही है जैसे सूर्यविका। और ये जो टेम्पल है एक्चुअली बर्न हाउस मतलब वो किसान का घर था, उनको मॉडिफाई करके टेम्पल बनाया गया है।
और हरिकृष्ण महाराज, आप सब जानते हैं हरिकृष्ण महाराज का बहुत बड़ा अवदान है ये इस मंदिर को बनाने में। तो यहाँ पे भी फॉल डाउन की बात हुई तो हरिकृष्ण महाराज का भी फॉल डाउन होने से पूरे होल यूरोप में हमारा जो प्रचार है कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत धीमा स्लो हो गया। उनके इतने अच्छे बोल्डली ही वाज प्रीचिंग ऑल ओवर यूरोप। तो उन्होंने ये मंदिर बनाने से पहले 1976 में श्रील प्रभुपाद जी से परमिशन लिया था, क्योंकि ये जो मंदिर है मेन डीटी है श्री श्री प्रहलाद नरसिम्हा, ना ही राधा माधव है, ना ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो उन लोगों ने बोला था कि हमको भगवान नरसिम्हा देव चाहिए सबको प्रोटेक्शन करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद आज्ञा दिया था और उन्हीं की आज्ञा से 1982 में इस मंदिर का स्थापना हुआ है। और ये जो सुंदर विग्रह प्रहलाद को गोदी में लेके नए उग्रम शांत उनका रूप है, वो जैसे लगते इतने मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं सच में मेरा तो हमेशा मायापुर का नरसिम्हा देवी प्रोटेक्टर था, अभी सेकंड प्रोटेक्टर आ गए मेरे जीवन में, वो है सीमाचलम का प्रहलाद नरसिम्हा देव। तो ये जो टेम्पल है सब सेल्फ सफिशिएंट है। मुझे बहुत इच्छा था, हमेशा मैं देखती थी सीमाचलम जाना है, पार्था को बार बार मैं पूछती रहती थी। मदन मोहन प्रभु की अपार कृपा है मुझे मंदिर दिखाने के लिए। तो ये फार्म कम्युनिटी है, कहीं हेक्टर जमीन है, जमीन में वो अपना जो भी तरकारी अनाज उगाते हैं, जैसे व्हीट होता है, बार्ली होता है, पोटैटो, कैरेट, वो 6 महीने कल्टीवेशन होता है और 6 महीना पूरा बंद, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है ना वो मंदिर, बर्फ गिरता है, बहुत ठंड है वो जगह, ऐसे लगता है नरसिम्हा भगवान के लिए सही जगह है। तो वहाँ पे मैं देखा कि इतनी सुंदर रोजेस है, फ्लावर्स है, कोई माता जी फूल चुन रहे हैं, कोई जमीन फार्म में काम कर रहे हैं, कोई मंदिर की सेवा में है, मतलब आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। और हम जो गेस्ट हाउस में थे, 3 रूम दिया हमको, ऐसे एकदम घने जंगल के अंदर कांच से दिख रहा है, कोई हिंस्र पशु तो ना आ जाए बाप, मतलब इतने एक अनोखा एक्सपीरियंस था एकदम जंगल के अंदर। तो हमने सैटरडे संडे मंडे 3 दिन रुके। सैटरडे को यहाँ पे नरसिम्हा देव भगवान का हवन होता है, यज्ञ होता है, और संडे के दिन भगवान नरसिम्हा देव का महाअभिषेक होता है, वो भी देखने के लायक है, बहुत सुंदर है। मैं आप सबको थोड़ा सा वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहूंगी, क्योंकि देख के भी हम आप सब उसी धाम में पहुंच जाएंगे, यही मेरा प्रार्थना है। और सारे भक्त लोग और हमने सेवा करने का मौका मिला पूरी रूप से, वहाँ पे हमने कुछ सीख के आते हैं जो यहाँ पे बताते हैं। मे नेवर वर्ट यू अगेन, वो जो अभी प्रभु ने बताया था। और जब मंडे के दिन श्रील प्रभुपाद जी का क्लास होता है ना, क्लास के बाद भी इष्टा गोष्ठी होता है, तो वो भी सीख के मैंने हम जो भी वहाँ से सीख के आते हैं हमारे जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं। और बहुत स्वादिष्ट प्रसाद, उनका जो ब्रेड है मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि गेहूं के साथ बार्ली का आटा मिक्स करके बनाते हैं। ये सब क्लास में बताने की बात नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत वो नरसिम्हा भगवान का जो इतना अनोखा प्रसाद खाने का भी सौभाग्य मिला। और कुकिंग तो मेरा एक मिशन है, मैं पूरी यूरोप ऑलमोस्ट मेरा कवर हो गया है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फार ईस्ट, तकरीबन मेरा वो पूरा खत्म हो गया। मैं एक मिशन है, मैं जहाँ भी जाती हूँ विग्रह के लिए, मैं अच्छा विग्रह के लिए मैं भोग बनाती हूँ। यहाँ पे भी 2 दिन भोग बनाने का मौका हुआ, मंगल आरती गाया, इवनिंग आरती गाया, मतलब हरे कृष्ण, ये सभी भक्तगण और गुरु महाराज की असीम कृपा और आनंदमय 3 दिन मतलब क्वालिटी टाइम हमने भक्त संघ में बिताया। और हम सोचा कि हमारे चेतना की शुद्धिकरण होगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। Hare Krishna. We would like to extend our grateful thanks to Her Grace Prema Nandini Mataji for so nicely describing today's verse and establishing
the supremacy of devotional service, especially chanting the Hare Krishna Mantra over all the ritualistic Vedic Karmakanda processes. So let us give her a big Hari Bol. Go to the regular announcements. As everyone is aware, 15th of this week is Shri Krishna Janmashtami. We will kindly be in touch with your MCs. We will let you know how the program is going to be planned. Today's main prasadam is sponsored, and of course 16th is Nandotsav as well as Srila Prabhupada's appearance day. This will be a decentralized program. You can be in touch with your MCs to know the details. Today's main prasadam is sponsored by Ganesh Prabhu and Mona Lisa Mataji and their daughter Gaurangi. Mona Lisa Mataji is also blessed when she is carrying a second child, a new devotee soul in her womb. So we will chant 3 times for their wonderful Vaishnava Seva. Also, Mangalarati Prasadam is sponsored by Prasanatma Prabhu's sector members. We will chant for them. And devotees who would like to do this wonderful service of sponsoring Prasadam, they can contact Ishtadeva Prabhu. So we will chant 3 times for these devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, we have many new devotees with us today. Before that, I would like to introduce and welcome His Grace Neelkamal Prabhu. Neelkamal Prabhuji, we request you to kindly stand up so the devotees can have your darshan. So, Neelkamal Prabhu is with us. We will give him a big Hari Bol. Prabhuji is here. And also we have Anuradha Mataji with us, who is attending for the first time. Anuradha Mataji, may I request you to kindly stand up. Hare Krishna, give her a big Hari Bol. Something like that. Yeah. Premandri Mataji has few names to announce, new members. Mataji is there. So meanwhile, we'll pass the mic to Mataji. Meanwhile, we have Nitin Prabhu and Megha Mataji and Swati Mataji. Can they kindly stand up? Nitin Prabhu and Megha Mataji, Swati Mataji, they are attending Sucharu Prabhu's cell. They are coming for the Friday Temple program for the first time. So we welcome them with a big Hari Bol. Also we have many devotees from Dayasagar Prabhu's group who are coming for the first time. I will call out their names and they can kindly stand up so the devotees can wish them. Kakil Prabhu, Manoj Prabhu, Amarnath Prabhu, Vinod Prabhu, Shyam Prabhu, Vikas Prabhu, Dharmendra Prabhu, Bhagwan Prabhu, Ram Singh Prabhu, Chatta Lal Prabhu, Chote Lal Prabhu, Dinesh Prabhu, Bablu Prabhu, Radhesham Prabhu, Bharat Sharma Prabhu, Lakhendra Prabhu, and Tukaram Prabhu. Let's welcome them with a big Hari Bol. So Mataji, you would like to call us? So we also have with us Milli Mataji and her daughter who are attending Sankarshan Prabhu's cell program. So we welcome Mataji also with a big Hari Bol. Hare Krishna.
आज हमारे कुछ न्यू गेस्ट पहली बार आए हैं। अदिति चक्रवर्ती जो हमारा सेल मेंबर है भक्ति विशा, और तुलिका माता जी ये प्रोफेसर हैं जो पढ़ाती हैं कॉलेज में, और गोमती आए हैं हमारे सेल मेंबर उठो पहली बार, और शिवली माता जी आए हैं। तो आप सब इनको आशीर्वाद दीजिए ताकि वो लोग अच्छा प्रगति करें। अच्छा, और एक जन आए अनिंदिता। अनिंदिता कोথায় তুমি? अनिंदिता कोথায়? हरे कृष्णा। मैं आप सब लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना भूल गई, वो है प्रकाशानंद सरस्वती जी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप देखने में तो स्वयं नारायण लगते हो, लेकिन आप भावुक की तरह नाम संकीर्तन क्यों करते हो, वेद वेदांत का पठन क्यों नहीं करते हो? तब महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने बोला कि मेरे गुरुदेव ने कहा तुम मूर्ख हो, और इस कलयुग में वेदांत सूत्र ये पढ़ने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम्हें क्या करना है? भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करो। तो बोले किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल, जपिते मंत्र होइनु पागल। तो महाप्रभु ये नाम जपते जपते पागल उन्माद हो गए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे बोल। Krishna will continue with the announcements. So today is the Balakrishna Prabhu's birthday. Is on the 13th